Hey everyone, welcome back to Fitzo. In today's video, we are going to talk about protein. So let's get started. Introduction to proteins. Proteins are the building blocks of life, responsible for the structure and function of all living things. Proteins जो होते हैं वो building block होते हैं लाइफ के, और ये सारे ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्रोटीन की कंपोजिशंस की बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के बने हुए होते हैं. ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं. जब भी हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो ईल्ड करेंगे अमाइनो एसिड्स को, दैट इज NH2 ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को, दैट इज COOH ग्रुप. Now what are amino acids? Each amino acid contain a carboxylic group and a amino group. हर एक अमाइनो एसिड जो होते हैं ना उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है. And by varying the group R attached to the carbon containing the amino group, many different amino acids are formed. ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. इसमें सेंट्रल कार्बन से एक NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है एंड एक COH ग्रुप लगा हुआ होता है. एंड देयर इज R अटैच टू कार्बन. जो R होता है वो वेरिंग ग्रुप होता है. जब भी वो वेरी करेगा डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म्ड होंगे. फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एलेनिन, लाइसिन एक्सेट्रा. देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स. Amino acids have been classified as essential and non-essential amino acids. Now you may be wondering what are essential amino acids and what are non-essential amino acids. So essential amino acids are those amino acids which our body cannot synthesize by their own. That means these amino acids are required from outside our diet. And for examples of these essential amino acids are histidine, isoleucine, leucine, methionine, lysine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine. And non-essential amino acids are those which our body can synthesize. That means we don't need these amino acids from outside, that means from our diet. Non-essential amino acids are alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glutamamine, glycine, proline, tyrosine and cysteine. Now classifications of protein. Protein is classified on the basis of sources, on the basis of presence of essential amino acid, on the basis of size and shape, and on the basis of molecular structure. Let's talk classification of protein in further detail. Based on sources, it is of two type, animal source and plant source. तो एनिमल सोर्स जो होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज़ मीट, एग, फिश, पोल्ट्री. एंड ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में बहुत अच्छे होते हैं. मिल्क इज़ ऑल्सो अ वैल्यूबल सोर्स ऑफ प्रोटीन. दैन प्लांट सोर्स की बात करें तो ये गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन होते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स, पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स. बट इनकी क्वालिटी जो होती है वो पुअरर होती है कंपेयर टू एनिमल सोर्सेज से. सोयाबीन इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन. सेकेंड, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ये टू टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन. तो कंप्लीट प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन द सफिशिएंट क्वांटिटी एंड रेशियो टू सप्लाई बॉडीज नीड. इट इंक्लूड एनिमल ओरिजिन एंड दैट इज मिल्क, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स एंड फिश. एंड देन incomplete protein. These proteins are deficient in one or more of the essential amino acid and therefore they do not support life on their own. ये जो incomplete proteins होते हैं इनमें एक या एक से ज़्यादा essential amino acids नहीं होते, इसलिए ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करते. All plant resources of proteins, that is vegetable, fruits, cereals, pulses, nuts and oil seeds contain protein in incomplete to varying degree. Classification on the based on size and shape. It is of three types: simple protein, conjugated protein and derived protein. Simple proteins are those proteins pure proteins that yield only amino acid on hydrolysis. वो proteins जो कि hydrolysis पे सिर्फ amino acids yield करें उनको simple protein कहते हैं. For example एल्ब्यूमिन जो कि एग में होता है, ग्लोबुलिन मिल्क में होता है, एंड कैरेटिन इन हेयर एंड नेल्स. कंजुगेटेड प्रोटीन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें न्यूक्लियस भी लगा हुआ है प्रोटीन में. फॉर एग्जांपल इट इज़ प्रेजेंट इन DNA एंड RNA. ग्लाइकोप्रोटीन जो कि बोन्स एंड टेंडन्स में होता है. नाउ डेराइव प्रोटीन. Derivatives of simple and conjugated protein obtained by the action of heat enzyme or chemical on the protein. जब भी किसी भी डेरिवेटिव सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं उन पे किसी भी एंजाइम में केमिकल का रिएक्शन होगा तो डेरिवेटिव प्रोटीन फॉर्म्ड होगा. दे मे बी प्राइमरी डेराइव एंड सेकेंडरी डेराइव प्रोटीन. एक्शन ऑफ रेनिट और केसिन इन चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन. मैन्युफैक्चरिंग में, चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में जो रेनिट का एक्शन होता है कैसिन पे फॉर फॉर्मेशन ऑफ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, ये प्राइमरी डेराइव प्रोटीन का एग्जाम्पल है. Classification of protein based on the molecular structure. It is of four types: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. Primary structure, sequence of amino acids bonded with peptide bond.
जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन. एनी डेविएशन इन अ सिंगल अमाइनो एसिड कैन डिस्टेरियस दैट इज सिकल सेल अनीमिया कॉज्ड बाय एन अमाइनो एसिड एरर इन द सीक्वेंसिंग ऑफ हीमोग्लोबिन. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं फंक्शन प्रोटीन का. कभी भी अगर कोई भी अमाइनो एसिड्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी या किसी भी एक अमाइनो एसिड का चेंज होगा तो वो डिस्टेरियस हो सकता है. जैसे कि सिकल सेल अनीमिया जिसमें अमाइनो एसिड एरर होता है हीमोग्लोबिन के सीक्वेंसिंग में. सेकेंडरी स्ट्रक्चर द फोल्ड्स एंड ट्विस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड चेन टू फॉर्म अ हेलिक्स स्ट्रक्चर. जो सिंपल अमाइनो एसिड्स अटैच थे पेप्टाइड बॉन्ड से, जब उनमें फोल्ड्स हो जाती है, ट्विस्ट हो जाता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज इन द मसल प्रोटीन एंड मायोग्लोबिन. टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स हैं मसल प्रोटीन एंड दैट इज मायोग्लोबिन. क्वाटनरी स्ट्रक्चर लिंकेज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स टू फॉर्म प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विद सब यूनिट्स दैट इज हीमोग्लोबिन. क्वाटनरी स्ट्रक्चर में जब 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स की चेन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्म हो जाती है और वो सब यूनिट्स फॉर्म करती है. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन. नाउ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन प्रोवाइड करता है 4 कैलोरीज पर ग्राम में. प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एवरी सेल इन अ बॉडी. प्रोटीन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एवरी सेल इन अ बॉडी. ये प्रोवाइड करता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन अ बॉडी. हमारी बॉडी में जितनी भी स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है. फॉर्मेशन ऑफ ऑल एंजाइम्स जैसे कि सारे ही एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी एंजाइम प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना है दैट इज हीम एंड ग्लोबिन. हीम इज आयरन एंड ग्लोबिन इज प्रोटीन. सो फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है. फॉर इम्यूनिटी पर्पस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड. एंड मसल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. Symptoms of protein deficiency. What are the symptoms that are caused because of protein deficiency? The deficiency of symptoms that include weight loss, anemia, reduced resistance to infection, fatigue, and muscular illness. These are all symptoms due to protein deficiency. So that's all for today. Hit the like button, do subscribe, and keep learning. Thank you for watching.